G, what did we study in the previous lecture? We talked about budget constraint. Done with budget constraint equation, that was P1x1 plus P2x2 is equals to M, where M is your income, P2 is your price of commodity 2, X2 is your commodity 2, X1 is the price is the commodity 1, and P1 is the price of commodity 1. So if we plot it, properties of budget set. So if we plot it on a y axis and x axis, how would be the budget line looking like? Downward sloping, fine, like this. All right, and this would be the y-intercept, and this would be the x-intercept, and this would be the slope. Okay, so according to the equation, that is P1x1 plus P2x2 is equals to M. How will we make it a straight line equation? How can we make it a straight line equation? Because it's a straight line, na? This one, the budget line. We'll make x1 or x2 the subject. So uh, according to the book, we can make x1 the subject or the x2 the subject. So according to the book, we are taking x2 on the y-axis. We're taking x2 on the y-axis and x1 on the x-axis. So can you make a budget line equation? Let's make it. Fine. P2 x2 is equals to minus P1 x1 plus M. Then comes x2 is equals to minus P1 over P2 x1 plus M over P2. Have you got that? Or should I, I've eaten one step. Which one is that? X2 is equals to minus P1 x1 over plus M over P2. So we can conclude that x2 is equals to minus P1 over P2 x1 plus M over P2. Now, through this equation, can we tell our y-intercept? How? We are following which mathematical equation? We are following which? Y is equals to mx plus c. So y is equals to mx plus c. So y would be x2 minus p1 over p2 would be
mx1 plus m over p2. X2 would be y, m would be minus p1 over 2 p2, and m is basically the slope, and x1 is x1 plus m over p2 would be the y-intercept, that is c. Fine. So this would be m over p2. This would be, what would this point be? M over p1, and this would be the slope minus p1 over p2. So the the coordinates here, or the points here, x1 and x2, the combination of two goods, we are taking two good model. Why? Because of simplicity. Okay? So these points here, what do they signify? Signify which part of the equation? P1 x1 plus P2 x2 is less than income, and the combination of x1 and x2 here on these budget line, on the budget line, would signify what? Is equals to income. So can we say that P1 x1 plus P2 x2 is less than or equal to m? Can we take any combination of x1 x2 here? No. Why? Because we will be exhausting, we have exhausted all of the income while being on the budget line. No, inside the budget line we will not be exhausting all the income. Okay, we will be exhausting all our income on the budget line. Fine. So let's go to how to calculate y-intercept and the x-intercept. So our equation was P1x1 plus P2x2 is equals to m. For the y-intercept, what we will do? Why? Because if we see on the y-axis, the x1, if we see x vertical axis that we have taken x2 on, if we see that there is no x1 according to the graph, you can see that this point is 0 0. So this would be anything 0 or x2. Fine. So what we are taking now? We will have to take what? x1 is equals to 0. So putting x1 is equals to 0 what would it do? P1 into 0 plus
P2 x2 is equals to m. So what we can do is, so this would be 0 plus P2 x2 is equals to m, and x2 would be m over P2. Fine. So this would be what? Our y-intercept. Here, this point would be m over P2 as signified by this. This would be m over P2. Fine. Then, if we want to find the x-intercept, this point, this would be m over P1. Why? Because x2 would be 0. x2 would be, this point would be anything x1 0, x1 0, x1 0. नहीं आ रही समझ? मैंने और आपने जो बोला है वो ऐसे है जिस तरह मैं उर्दू जुबान में बोल रहा हूँ और आप अबरानी जुबान में बोल रहे हैं, वही सिमिलर है. x1 0, we are putting x2 0, so x1 similar. I am talking the same and you guys here are talking the same. There was one girl who talked in x1. She was saying that the coordinate x1 would be x1 and x2 would be 0. So mathematically we can write x1 comma 0. These would be the coordinates. So x2 is equals to 0. We're putting x2 is equals to 0 to find the x-intercept. That would be x1 and 0. These would be the coordinates. We'll be putting this in the line P1 x1 plus P2 x2 is equals to m. So P1 putting x1 as x1 plus P2 putting x2 as 0 is equals to m. So P1 x1 is equals to m. So x1 would be m over P1. Fine. So where is the cursor? Where is the cursor? This is the point. M over P1 would be our x-intercept. Then comes the slope. The slope would be, we found it here, minus P1 over P2. Minus P1 over P2. Here, minus P1 minus P1 over P2. What does this minus signifies? Opportunity cost. Seriously. Opportunity cost. Are you sure?
बेटा नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दी, ये ऑड वाले कौन से, जरा उठे सर। ऑब्वियसली द नेगेटिव साइन signifies the opportunity cost. What is the concept of opportunity cost here? Yes, so we are taking one good to let go another good. Fine. This is why there is a negative sign, and we negate this negative sign. We only take the price ratio P1 over P2. We will not take into account this negative sign. This signifies downward sloping slope. So this signifies downward sloping gradient of the line. Fine. So, and the concept of opportunity cost. But when we will take P1, we will only take the ratio P1 over P2. What will this ratio tell you? The increase in this ratio would cause what? A pivotal shift. A pivotal shift. A decrease in this ratio would cause a pivotal shift. Increase in M would cause what? A parallel shift. Increase in income would cause a parallel shift. What will happen? What will happen if there is an increase in income? Income increases. Outward parallel shift. Why? The reason, मुझे रीजन बताएं कि क्यों आउटवर्ड पैरेलल शिफ्ट होगा. अच्छा, ठीक हो गया है. और जी ओके, तो फिर पैरेलल शिफ्ट क्यों है? शिफ्ट भी तो हो सकता है. व्हाई आर यू सेइंग कि पैरेलल शिफ्ट है? वेरी गुड. वेरी गुड. क्या है बताओ, जल्दी करो फटाफट, मेरे पास टाइम नहीं है, पहले मैं लेट आया. हाँ जी. एक तो पैंडेमिक ने ना पूरी हालत ही खराब हुई, सुबह उठा ही नहीं जाता. 5 बजे सोना है और सुबह किस तरह उठे बंदा. हाँ जी जल्दी. कम ऑन गाइस. 101, 103, 201. या यस, एग्जैक्ट सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रही है. इसकी ये कोई रेशो को सिग्निफाई कर रहा है. वो किसकी रेशो है? गुड, शाबाश, गुड. हाँ जी गुड, सही बताया था, ठीक था. लेकिन मुझे ये बताओ कि कौन सी रेशो है ये? स्लोप की रेशो. स्लोप सेम है ना. जब स्लोप सेम है, क्या आप भी वही रहे थे, क्या नूर भी सही रही थी, अफसा भी सही रही थी, एंड यू वर सेइंग द सेम थिंग. The ratio P1 over P2 remains the same because the prices P1 and P2 are the same. जिसकी वजह से आपका जो X2 है and X1 would increase by the same ratio. The consumption of X1 and X2 would increase by the same ratio. यही कह रहे थे ना. इसका ये मतलब है क्यों हो रहा है
क्योंकि आपका जो P1 और P2 है वो क्या है, वो सेम है, जिसकी वजह से देयर वुड बी हमेशा जो ये गैप रहेगा वो सेम रहेगा। ये है पैरेलल शिफ्ट। और आर्म शिफ्ट में क्या होता है? आर्म शिफ्ट क्या है? एक तो पिवटल है ना, इसके अलावा भी एक शिफ्ट, यानी कि ये बटरफ्लाई यहाँ से भी तो स्टार्ट हो सकती है और ये यहाँ भी जा सकती है। पिवटल शिफ्ट ये होगा कि इस पॉइंट से भी शिफ्ट आएगी। एग्जैक्टली, दोनों चीजें चेंज होगी, P1 P2 की रेशियो भी चेंज होगी और इनकम भी चेंज हो जाएगी। दिस वुड बी सिंपल शिफ्ट, दिस वुड नॉट बी पैरेलल शिफ्ट। इसको आप पिवटल शिफ्ट भी नहीं कहेंगे। यस, पैरेलल, दे वुड बी पिवट एज वेल एज पैरेलल देंगे। पिवट के अंदर जो है वो ये पॉइंट, ये इस पॉइंट के ऊपर पिवट करना बहुत जरूरी है, ऐसे या ऐसा, ठीक है। सिंपल पैरेलल शिफ्ट है, सिंपल पैरेलल शिफ्ट नहीं बेटा, सिंपल इट वुड बी ओनली ए शिफ्ट। बेटा सिंपल शिफ्ट में आपकी P1 ओवर P2 की रेशो भी चेंज हो रही होगी, ठीक है, और आपकी इनकम भी चेंज हो रही है, यानी कि P1 भी इंक्रीज कर रहा है, P2 भी इंक्रीज कर रहा है, M भी इंक्रीज कर रही है, P1 भी इंक्रीज कर रहा है, P2 शायद थोड़े मार्जिन से डिक्रीज कर रहा है, M भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। P2 इंक्रीज कर रहा है, P1 थोड़े से मार्जिन से डिक्रीज कर रहा है, M भी इंक्रीज कर रही है, तो क्या होगा? There would be a simple shift। अब बात आती है दूसरी, वो क्या बात है? यार ये मेरा जो मार्कर है ना, ये बहुत डेंजरस है असल में बेटा। वो उधर से मैं जब पिछले वीक, एक पहले वीक में रिकॉर्डिंग कर रहा था ना, तो मेरी रिकॉर्डिंग नहीं आ रही थी। सो व्हाट आई बॉट दिस वन, ठीक है। सो वी विल बी यू नो, अभी रिकॉर्ड हो रहा है इस वक्त, ठीक है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर ऑड वालों को जाएगा, ठीक है, जो कि आधे ऑड इधर ही बैठे हुए हैं, मुझे नहीं समझ आ रही क्यों, ठीक है। क्या ये क्या? अच्छा बेटा जी, ये आ गई आपकी x2। वैसे आप लोगों को समझ आ रही है ना, क्लियर है ना? थोड़ी सी राइटिंग गिव और टेक। ये लाइन जो नीचे जो x कोऑर्डिनेट वाली लाइन है ना, ये वाली x एक्सिस वाली, ये स्ट्रेट है, ये समुंदर नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है ऐसे करके, बिल्कुल फुट रूलर के साथ बनानी है आपने, सही है। और इधर आपने लिखना है, इधर क्या लिखोगे आप? x1। x1 भी इस तरह का नजर नहीं आता असल में, x1 भी अच्छा स्मूथली लिखना है आपने, सही है? हाँ अच्छा। अब hi sir, this is Zain Tahir from Econ 201 section B. I emailed you yesterday as well. I wanted to inform you that I am not feeling well, so I couldn't attend today's lecture on campus. Fine. अच्छा जी, ये होगी आपकी जो स्लोप है इसका, वो कौन सी होगी? P1 ओवर P2। अब मुझे ये बताएं आप, सिंपल मुझे बताएं, M इंक्रीज होगा तो क्या होगा? पैरेलल शिफ्ट होगी किस साइड पे? आउटवर्ड्स। ये नजर आ रहा है आपको कर्सर? ये मच्छर साहब, इसको ये देखो इस साइड के ऊपर, ठीक है। और किधर गया ये? अगर M जो है वो डिक्रीज होगा, M इनकम डिक्रीज होगी इनवर्ड, तो इनवर्ड पैरेलल शिफ्ट होगी। पैरेलल शिफ्ट मतलब दो लाइनों के अंदर जो डिस्टेंस होगा वुड रिमेन द सेम, सही है। अब क्या चक्कर होना है? अब बड़ा मसले वाली बात आ गई। अब जो है ना वो बड़ी खतरनाक बात आने वाली है, वो है
1/p2। ये माइनस है बाय द वे, अगर नहीं नजर आ रहा तो ये मैं माइनस लगा देता हूँ। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूं कि P1 इंक्रीज कर गई है, P2 सेम रह गई है एंड M सेम है, x2 सेम रहेगा, x1 डिक्रीज हो जाएगा, x2 सेम रहेगा, x1 डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन यार मुझे तो समझ ही नहीं आई कैसे किया आपने। प्राइस ऑफ x1 इंक्रीज होगी तो उसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी, उससे क्या होगा, x2 क्यों नहीं इनवर्ट शिफ्ट होगा, प्राइस कांस्टेंट है। और तो फिर मैं इधर पॉइंट क्यों नहीं लगा सकता, इधर 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 सही है, ठीक है। अब अगर हम x एक्सिस देखें, x एक्सिस के अंदर x2 कोऑर्डिनेट ही नहीं है, ठीक है, P2 का मसला ही नहीं है, P2 रिमेन्स द सेम। एंड अगर हम P1 को देखें तो कौन सा एक्सिस हिलेगा, x एक्सिस हिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने x1 वी हैव टेकन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा होता है, पक्की बात है, मान लेते हैं x एक्सिस would change, and what would be the change on the x axis, inwards, so they कहीं भी हो जाएगा, इधर पॉइंट आ सकता है, 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 तो आई चूज दिस, ठीक है। तो दिस वुड बी आर m, this point would be m over p2, m over p2, m over p2, very good, m over p1, सही है। now this point, this would be m over p1, I'll call it m over p1 star, this was m over p1, ठीक है, I'll call this m over p1 star। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका x इंटरसेप्ट चेंज हो गया है, लेकिन y इंटरसेप्ट को क्या होगा, p2 कांस्टेंट रहेगा तो उससे क्या होगा, पिवटल शिफ्ट तो होगी ना, कंजम्पशन सेम रहेगी, तो मेरे y इंटरसेप्ट को क्या होगा, m over p2, ठीक है। सो m over p2 इज इक्वल टू m over p2 स्टार। ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को क्या होगा, m over p1 is greater than m over p1 star। ये जो m over p1 है, ये बड़ा होगा m over p1 स्टार कि नहीं, छोटा होगा, बड़ा होगा, यही लिखना है, ठीक है। अब क्या स्टोरी है, अब हमने आना है बजट लाइन के ऊपर। अब हम बजट लाइन ड्रॉ करने लगे हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन है, इसके अंदर कोई खड्डे नहीं है, ठीक है, ये लेकिन मेरे होंगे, I will try to make it as straight as possible. So I've made it as straight as possible. This is a straight line, by the way. This is not a curve. ओहो, उल्टा बना दिया, अब मैं क्या करूं,
ये इरेज हो गया बेटा, ठीक है। दिस इज द पिवटल शिफ्ट। ये जो इरेज हुई हुई है ये वो लाइन नहीं है, ठीक है। देखो इस तरह अगर आप ये देखो, ये लेसन है आप लोगों के लिए भी, इससे ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया, वेरी गुड। इस तरह हम फिर हमेशा इस तरह किया करेंगे क्योंकि ये प्रोमिनेंट लग रहा है, ठीक है। देखो ये गलती होती है, कहीं भी स्पॉट ना लगाना क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो। सही है, सही है। लेसन लर्न, ठीक है। उसके बाद आपने ऊपर गए, आपने वो करेक्ट किया, इस तरह की आपने कोई आपने इरेज करना है। आई हैव द ऑप्शन टू इरेज इट बट इट विल टेक 5 मिनट्स ऑफ माई टाइम। सही है। सो आई हैव क्रॉस्ड इट। ये जो दिस इज द दिस दिस इज द एक्चुअल लाइन हेयर। सही है। नाउ इट इज सिग्निफाइंग अ पिवटल शिफ्ट। अब P1 और P2 को क्या हुआ? P1 over P2 चेंज हो गया, सो दैट वुड बी P1 over P2 स्टार, फाइन, with minus, with minus। सही है। This is a pivotal shift। Now coming towards, if we decrease P1 what will happen? सही है। x2 and x1, ठीक है। ये आ गई आपकी एक जो पहली बजट लाइन, ठीक है। ये हो गया m over P2, ये हो गया m over P1। पिछली बजट लाइन में जो पिवटल शिफ्ट आई थी उसमें बजट लाइन क्या हो रही थी? वॉज इट स्टीपर, वॉज इट फ्लैटर? स्टीपर, स्टीपर। दैट वॉज अ स्टीपर बजट लाइन, इट स्टीप्ड, इट द स्लोप became more steep। सही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि P1 रिड्यूस हो गई है, M सेम रह गया है एंड P2 सेम रह गई है। अब मैं क्या करूंगा? What will I do? I am helpless. Kindly help me. X1 की क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी? अच्छा, ठीक है, मान लेते हैं। So when the price of commodity X1, that is P1, decreases, the consumer would, what would the consumer do? Increase the consumption of X1 while keeping the consumption of X2 the same. So what will happen? There would be a pivotal outward shift. So we'll have another M over P1 star here and M over P2 star. This would be the budget line. So here M over P2 is equals to M over P2 star, and here what is happening? M over P1 star is greater than M over P1। ठीक है। So now how
how do we define the slope and what we will write? In the test I am just giving you right now. अभी आपका टेस्ट है, कोर्स आउटलाइन नहीं देखी? अब तो पता चलेगा, जिन्होंने कोर्स आउटलाइन देखी है उनको पता चल जाएगा कि आज जो था वो एक सरप्राइज क्विज रखा हुआ था मैंने। तो इवन वालों को कोई तोहफा तो देना था ना, 2 हफ्ते में पार्टी करके आ गया। हाँ जी, क्या बोला था मैंने, मुझे खुद याद नहीं। एक मिनट, m over, how will we write, what have we done in French here? English, मैं तो फ्रेंच लिखी है, मुझे इंग्लिश चाहिए। यस, ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश। The slope has become less steeper or flatter, and there is a pivotal shift, a pivotal outward shift. Why? Because the price of good one has decreased, due to which the consumption of good one has increased, and while keeping the x2 x2 constant, the consumption of x2 constant, due to no increase in price of P2, and the income is constant. So we'll have a pivotal outward shift, and the slope of the new budget line would be flatter or less steeper. Fine? Yes बेटा। लेस स्टीपर से क्या होगा? आपने नेगेटिव, अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम नेगेटिव साइन, when we talk about why are we getting the negative sign, I am important to distance from the class, okay? So मास के साथ ये प्रॉब्लम है that you will not be able to hear it properly। अच्छे बात है। क्या था क्वेश्चन? फ्लैट होने से अब आपका क्या इशू है? ये जब हम नेगेटिव निगेट द नेगेटिव, क्या हो रहा है? प्राइस जब अगर स्लोप ज्यादा होगी तो क्या होगा? स्लोप ज्यादा होगी तो स्टीफर होगा, स्लोप कम होगी तो फ्लैटर होगा। ठीक है, ये हो रहा है। P1 कम हुआ, ठीक है, P1 कम हुआ, P1 कम हुआ, P2 ज्यादा था, तो बेसिकली न्यूमरेटर क्या हो गया? स्लोप आपकी कम हुई। जब स्लोप आपकी कम हुई तो क्या हुआ? फ्लैटर। अब अगर इसके अंदर अगर आप नेगेटिव साइन डाल देते तो क्या होगा? आपका सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आपकी जो स्लोप फ्लैटर होनी है वो स्टीपर हो जाएगी, जो स्टीपर होनी है वो फ्लैटर हो जाएगी। समझ आई? क्लियर? गॉट दैट? मैं पिछले 1 हफ्ते से ये क्लियर करी जा रहा हूँ। आपकी जब रेट ऑफ चेंज जब ज्यादा होगा तो क्या होगा? स्लोप स्टीपर होगी। रेट ऑफ चेंज जब ज्यादा कम होगा तो स्लोप फ्लैटर होगी। चलिए, मैं थोड़ा सा थोड़ी इसके अंदर मैंने क्या थोड़ा ऐड किया है, मैंने ये कहा है कि हम इसी वजह से नेगेटिव साइन निगेट कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन से ये चीज ऑपोजिट हो जाएगी। P1 कम हुआ, P2 remains the same, तो स्लोप को क्या होगा?
स्लोप कम हो जाएगी, ठीक है। P1 remains the same, P2, P1 decreases and P2 remains the same. P1 decreases and P2 remains the same. What will happen? Slope decrease हो जाएगी. It would be a flatter slope. Flat हो जाएगी, सही है। अब बात आती है, मैं कहता हूं समझ आइए, क्लियर है सब कुछ अभी तक? इज देयर एनी प्रॉब्लम? आपको क्लियर हो गया, समझ आ गई है? इसको आप इंग्लिश में लिख लेंगे, फ्रेंच नहीं लिखनी, फ्रेंच भी लिखनी है लेकिन साथ इंग्लिश जरूरी है। और जो हम फ्रेंच पढ़ रहे हैं जिसका नाम मैथमेटिक्स है, वो आपने यू नीड टू इंस्ट्रक्शंस, बाय द वे मैं इंस्ट्रक्शन दे दूं, यू नीड टू बी रीड नंबर 1, इस तरह की डेफिनेट वर्क, आई विल गिव दिस वर्क फ्री ऑन 500, ठीक है, बस जैसे ठीक है ना, it should be neat, number 1, everything should be properly labeled, number 2, you need to have a why for everything. Why से नहीं, क्यों, you need to have a what of everything. Don't worry about the when, because I even don't know when, ठीक है। Why, what, concentrate on these two questions and you will ace it. Econ 201 is a difficult course, सही है। Econ 201 is a very important and a difficult course. You need to get in touch with the book. This is that variant. अगर आप लोगों ने कोर्स ऑफलाइन देखी हो तो वेरिएंट बुक है, सही है। You need to get in touch with Varian and Kotsianis. You will be following these two books, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूं इधर से, notes first, then a supplement with the book. Supplement it with a book. 5. कौन से बच्चे जो हैं वो Econ 201 की क्लास में व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है? रेज योर हैंड्स। वेरी गुड अनीक, ठीक है। अक्सर बेटा, अनीक अक्सर, ठीक है। अच्छा जी, मैं कहता हूं price of P1 increases 3 times, P2 increases 5 times, एक मिनट, M remains the same. Can you draw the new budget line? Draw it. अल्लाह करे रिकॉर्ड हो रहा हो। So the first budget line would be P1 x1 plus P2 x2 is equals to M, ठीक है। तो दूसरा, अगर 3 times P1 इंक्रीज हुआ तो दैट वुड बी 3P1 x1 plus 3 plus 5P2 x2 is equals to M,
5p2x2 is equals to minus 3p1x1 plus n. So that would be x2 is equals to minus 3 over 5 p1 over p2 x1 plus m over 5. अब ये कौन सा केस है? पहले p1 ओवर p2 की रेशो थी 1, अब p1 ओवर p2 हो गया 3 ओवर 5. माइनस की बात नहीं करनी, and your y-intercept is m over 5. This is your y-intercept. अब हमारे पास क्या है, क्या नहीं है? किधर गया? एक मिनट, 5p2 ये रहे. हाँ जी, पहली तो बात फॉर श्योर है ना कि देयर वुड बी अ इनवर्ड शिफ्ट. वाई? क्योंकि दोनों चीजें इंक्रीज, प्राइस P1 एंड प्राइस P2 इज इंक्रीजिंग. ये तो इससे समझ आ गया कि देयर वुड बी एन इनवर्ड शिफ्ट. समझ आई है? अब हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया m ओवर 5p2. पहले हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या था? m over p2. That means our y intercept has decreased by a ratio by, ये पहले m over p2 था, अब m over 5p2 है. ठीक है? x इंटरसेप्ट को क्या होगा? x इंटरसेप्ट भी डिक्रीज होगा क्योंकि आपकी प्राइस P1 इज इंक्रीजिंग हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. सही है? तो अब अगर आप x इंटरसेप्ट किस तरह फाइंड करते थे? हम भी पुट क्या x इंटरसेप्ट को क्या करते थे? x1 को क्या करते, x2 को क्या करते थे? x2 को 0 पुट करेंगे तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा. अब करें पुट. 0 is equals to minus 3 p1 x1 plus m over 5p2. ये 5p2 इंटू 0 करेंगे तो क्या होगा? 10p2. ठीक है, 0 हो गया. जीरो इंटू 5p2. अगर हम 5p2 को 0 की तरफ लेकर जाएंगे, जो कि लेकर जाएंगे, दैट वुड बी 0. ठीक है, और ये आ गया 3p1x1 प्लस m. m इज इक्वल टू माइनस 3p1x1. क्या हुआ? किधर है? ठीक है, ये प्लस है, ये प्लस है. ठीक है, अब x1 वुड बी इज इक्वल्स टू m ओवर 3p1. ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या आ गया? अब हम इसको प्लॉट करने लगे.
x1 would be m/3p1। ठीक है, अब हम इसको प्लॉट करते हैं। ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, x2 क्या था, y इंटरसेप्ट क्या था, ठीक है, m/5p2, ये क्या है m/p2। और x1 सॉरी x इंटरसेप्ट क्या था, m/3p1, सही है। और ये आ गया m/p1, ये स्लोप आ गई p1/p2, ये आ गया माइनस। तो ये आ गया शिफ्ट। ये रैंडम लगाया है, बिल्कुल सही कह रहे हो, रैंडम लगाया है। बेसिकली इसका गैप ये रैंडमली ही लगाना है, लेकिन इसका गैप आपने ज्यादा शो करना है, क्योंकि 5 की रेशियो से कम हो रहा है। इसका गैप आपने कम शो करना है, क्योंकि 3 की रेशियो से कम हो रहा है। ठीक है, प्लॉट करने का मैटर m सपोज करके p1 सपोज करके इस तरह का करना। ठीक है, बस ये बता देना कुछ इस तरह लगे कि ये गैप ज्यादा है, ये गैप कम है। अब क्या ये कौन सा शिफ्ट आ गया, ना कि पैरेलल नहीं हो सकता, ये शायद पिवट नहीं हो सकता। पिवट किसी भी चीज से एक जगह जुड़ी होती है और दूसरी जो है वो कम ज्यादा होती है। It would be a shift, that's it. ठीक है, it would be a shift, that's it. ये क्या था P1 और P2? हाँ नहीं, हमारा P1 और P2 क्या था, मेरा कलम किधर, ओहो क्या था भाई, वेरी गुड, -3p1/5p2। अब आप मुझे बताएं एक बार कि 3p1/5p2 एक तरफ है एंड p1/p2 एक तरफ है, तो स्लोप को क्या हुआ है, फ्लैटर हुई है या स्टीपर हुई है, फ्लैट हुई है, स्टीप नहीं हुई। सही है, कैसे पता चला है आपको, हाँ 3/5 को डिवाइड कर लो, क्या आएगा 0.66, ठीक है 0.666666। सही है, अच्छा 0.6 है और एक तरफ 1 है, P1 और P2 के साथ जो आपका जो नंबर गिवन है वो 1 है, ठीक है, और यहाँ 0.6 है, तो 0.6 इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, 0.6 इज लेस देन 1, सही, क्या हुआ, slope would be, yes, समझ आई, क्लियर, कोई एम्बिग्विटी इसके अंदर, कोई एम्बिग्विटी किसी किस्म की, लेजिबल राइटिंग है, हमारे मेमोरी लेवल में कहते थे राइटिंग शुड बी लेजिबल, ठीक है, मुझे नजर आ रहा है, मुझे फिर राइटिंग समझ आ रहा है, लेकिन आप लोगों को कुछ समझ आ रही है, ये 90% ठीक है, फाइन, ठीक है, so be ready for an extremely roller coaster ride from now on. It would be a roller coaster. मैंने भी बहुत गलतियां करनी है, this is econ 201 for you. I will make a lot of mistakes, you will make a lot of mistakes,
but we will do it together. Fine? Fine? Work hard. एक दो से ज्यादा एज नहीं होते इसके अंदर. ए इसमें मुश्किल से आता है इस कोर्स के अंदर, और जो ए वाला बच्चा होता है मेरे ख्याल में वो थ्रू आउट ए लेगा इस पूरे कोर्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर. समझ आई? ये इस तरह का कोर्स है. यू नीड टू एड्रेस व्हाट, you need to address why, you need to be immaculate in your diagrams, and you need to label all the diagrams. Assignments should be submitted on time. If you will be 10 minutes late, you will be marked absent. Just like I was 10 minutes late, I marked myself absent today. Okay? So I will not take attendance today because I was 10 minutes. फाइल मैं गिरा नहीं रहा, ये मैं सेमेस्टर के बाद स्टार्ट में इस तरह कहता हूं, तो परेशान नहीं होगा, आप लोगों ने घबराना नहीं है. अच्छा मजेदार कोर्स है अगर इसको मजेदार लेके चलोगे. अगर आप इसको हेडेक बना लोगे, टेंशन लोगे, तो ये कोर्स आपकी हेडेक बन जाएगी. सही है? आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है? मैं आपको असाइनमेंट दे दूं? हाँ जी, काफी देर होगी, दोस्त से यही खेली जा रहे हैं. ठीक है, आपको इस पे एक असाइनमेंट आएगी आज कर लें. ठीक है, और एक क्विज भी आएगा, तो बी रेडी फॉर द क्विज. ठीक है, तो असाइनमेंट आएगी, उसके बाद आएगा आपके सामने एक अदर क्विज. नेक्स्ट क्लास में आई लेट यू नो कि कब होना है, लेकिन अभी जस्ट कंसंट्रेट व्हाट आई सेड. ठीक है, इसके साथ जस्ट प्ले इट अराउंड. यू गॉट टू एक्सेस वन लाइन एंड 1 to 3 three variables that would change. प्ले इट अराउंड. P1 को कम करके देखो, P2 को ज्यादा करके देखो, M को ज्यादा करके देखो, M को कम करके देखो. प्ले इट अराउंड. ये जिस लाइन जो पहले 3 टाइम्स इंक्रीज किया, 5 टाइम्स इंक्रीज किया, अब m इंक्रीज करके देखो क्या होगा, m इंक्रीज करके देखो क्या होगा. अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, जो आपको कॉन्सेप्ट मुझे लगता है समझ आ रही है सबको, यू वुड हैव नो प्रॉब्लम. ठीक है, ये है ही कॉन्सेप्ट. दैट्स इट. ऑड वाले किधर? नो सोशल डिस्टेंसिंग, नो नथिंग. ठीक है, आप लोगों की जान मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त. 1 मिनट यार, मुझे ये बंद कर लेंगे.